Good morning to everyone. We will start with the new chapter in today's lecture, investment accounting. It is it comes under accounting standard 13. So investment accounting is governed by accounting standard 1313, and as the name you can understand, this is about investment. So investment can be done by both individual or company. See, when we are talking about investment, investment can be done by anyone. Investment can be done by anyone. It can be done by individual. It can be done by company. So what do you mean by investment accounting? So investment accounting means purchasing or putting the amount of your after the expense, the saving which is there from the or the reserves which is there, that is invested in the market. It can be invested, it can be invested by purchasing securities from the market. And this, as I told you, this investment can be done by anyone. It can be a person or it can be a company. So there are two types of investment. There are two types of investment. One is known as fixed income bearing. One is known as investment in the fixed income bearing securities such as debentures, bonds, which fetch a fixed return like interest. The interest what you get is fixed. So its investment can be done on fixed income bearing securities such as debentures, bond, which give a fixed rate of from which a fixed rate of income, that is interest, can be earned. And another one is known as variable or non-fixed income bearing securities. Can anyone tell me which is a security in which you can get fluctuating income? Depending upon the performance of the securities, you will be able to get the income. Which are those investment which fetch a fluctuating income? It is equity shares. When you invest on equity shares, you may get a non-fixed income, that is depending upon the performance of the company. The value of the equity shares will change in the stock exchange. The market value of the equity shares does not remain constant. It may increase or it may decrease depending upon the performance of the company in which you are doing your investment. Means जब आप equity shares खरीदते हो, as an investor, when you purchase equity share from the market of any company, that value of the equity share will not be same. आज एक value है, कल एक दूसरा value रह सकता है. So the values will change depending upon the performance of the company, depending upon the performance of the company. And if you invest on a fixed income, that is, for example, debentures, then you will be getting a fixed interest. You will be getting a fixed interest. And if you invest in equity shares, you may get a fluctuating dividend. Means equity shares का dividend फिक्स्ड नहीं है. इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड नहीं है. It depends upon the performance of the company, and
पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो इज नॉट कंपल्सरी कि कंपनी को डिविडेंड मिल भी कंपनी जो है आपको डिविडेंड पे भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है, बिकॉज जब आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो उसके ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा दैट इज नॉट फिक्स्ड, कितना डिविडेंड मिलेगा दैट इज नॉट फिक्स्ड, सो इट मे बी fluctuating dividend depending upon the performance of the company. So there are two types of security, there are two type of securities in which you can invest. One is known as fixed income bearing security. Now what is the income on this fixed income means debentures में आपको क्या income मिलेगा? Interest is the income which is fixed. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स्ड होता है डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स के आगे आप देख सकते हो 8% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स. नाउ 8%, 10%, 12%, ये क्या है? दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू विल अर्न इफ यू इन्वेस्ट इन दोज debentures or those securities. But have you any time heard about 10% equity shares, 12% equity shares, 15%, 20% equity shares? आपने इक्विटी शेयर्स के आगे कभी परसेंटेज देखा है? नहीं, बिकॉज इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको कभी भी फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता. व्हाट इज द रिटर्न दैट यू गेट ऑन इक्विटी शेयर्स? इट इज नॉट इंटरेस्ट, इट इज डिविडेंड. आप इक्विटी शेयर्स पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, एंड वो डिविडेंड कभी भी फिक्स्ड नहीं होता. इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. सो दैट इज नोन एज नॉन फिक्स्ड और वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी. We have only equity shares in non-fixed or variable income bearing securities. but फिक्स इनकम आपको डिबेंचर्स में भी मिल सकता है, बॉन्ड्स में भी मिल सकता है, कोई लोन लो तो उसमें भी फिक्स इंटरेस्ट हो सकता है. सो फिक्स इनकम बेरिंग सिक्योरिटी, देयर आर several securities which bear a fixed income, but for non-fixed or fluctuating income, we have only equity shares. So this way, the individual or the company may consider to make an investment either on fixed income bearing security or on non-fixed income bearing securities. Now, before understanding this chapter, there are certain concepts that we have to understand to get to know, to understand this chapter in a better way. We will do some of these concepts, which is very, very important to understand this chapter. So सबसे पहले when you are doing a investment, इन्वेस्टमेंट मतलब आप क्या करोगे? आप सिक्योरिटीज को परचेज करोगे. इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? यू विल परचेज सम सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, एंड whenever you want you may even sell the securities in the market. मतलब ये फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी रहने दो या नॉन फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी रहने दो, when you are thinking of doing a investment, what you will have to do, you will have to purchase these securities from the market. तो आपका सबसे पहला कंसेप्ट ये चैप्टर में, what you will see, there will be two kind of entries. One, purchase of securities, अनदर सेल ऑफ सिक्योरिटीज. तो यहाँ पे दो टाइप आपको समझना है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में. या तो आप परचेज करोगे सिक्योरिटीज या तो आप सेल करोगे. एंड हियर देयर आर टू टाइप्स. हम सबसे पहले लर्न करेंगे अबाउट फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज सच एज डिबेंचर्स, वेयर यू विल गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, फिक्स्ड
सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट फिक्स्ड इनकम। तो फिक्स्ड इनकम रहने दो या नॉन फिक्स्ड इनकम रहने दो, एक चीज तो इट इज वेरी मच सिमिलर, दैट इज आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो यू विल हैव टू परचेज द सिक्योरिटीज, you will have to purchase the securities from the market and आपको जब चाहिए आप वो सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। जब हम फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज परचेज करते हैं तो देयर में बी एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस और come interest purchase price. Now what do you mean by X interest purchase price or what do you mean by come interest purchase price? X interest मतलब, see suppose for example today, that is 30 July, what I am doing is, suppose आज जुलाई का लास्ट डेट है, सपोज टुडे इज 31 जुलाई, और आज मैं क्या करती हूँ, मैं कोई कंपनी का सिक्योरिटी परचेज करती हूँ। सपोज आई एम परचेसिंग 100 डिबेंचर्स ऑफ अ XYZ कंपनी। मैं XYZ कंपनी का 100 डिबेंचर्स परचेज करती हूँ, सपोज 100 रुपीज में। सो 100 इंटू 100 मैं कितने में परचेज करती हूँ, टेल मी। 100 डिबेंचर्स 100 रुपीज में परचेज करती हूँ, सो मीन्स आई एम परचेसिंग 100 डिबेंचर्स at 100 rupees at rupees 10,000. This is the purchase price for me. लेकिन when we say X interest, देखो जो डिबेंचर्स होता है उसमें इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, मतलब डिबेंचर्स में आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स्ड रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज 10% डिबेंचर्स, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट ये डिबेंचर्स पे मिलता है। इफ इट इज 10% डिबेंचर्स, देन हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन दोज डिबेंचर्स, कैन एनीवन टेल मी? If it is 10% debentures, how much is the percentage of interest on those debentures? If it's 10% debentures, 10% debentures, मतलब rate of interest on debentures is 10%. ये 10% डिबेंचर्स मतलब क्या है, डिबेंचर्स के आगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा दिया रहता है। अगर ये 10% डिबेंचर्स है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। सो इफ इट इज 8% डिबेंचर्स मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो डिबेंचर्स पे, इफ यू परचेज द डिबेंचर्स, इफ इट इज 8% डिबेंचर्स तो आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। इफ इट इज 15% डिबेंचर्स तो आपको 15% इंटरेस्ट मिलेगा। एंड कंपनी अपना इंटरेस्ट, जो कंपनी का तुम डिबेंचर्स खरीदते हो, सपोज यू आर परचेसिंग द डिबेंचर्स ऑफ, सपोज it is XYZ कंपनी, it is XYZ कंपनी, आप उसका डिबेंचर्स खरीदते हो और वो 10% डिबेंचर्स है, तो इट इज आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। एंड whenever we are purchasing the debentures of one company, आपको ये पहले से पता रहेगा कि वो कंपनी इंटरेस्ट कब पे करती है। द डेट ऑन विच इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इज नोन एज द ड्यू डेट। जो डेट पे इंटरेस्ट पे होता है वो डेट को हम बोलते हैं ड्यू डेट। अब कंपनी के ऊपर है, वो इंटरेस्ट साल में एक बार दे सकती है। सो सपोज XYZ लिमिटेड पेज द इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च। कब पे करती है इंटरेस्ट, 31 मार्च को। तो हमारे लिए ड्यू डेट कौन सा है, टेल मी। इफ द कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च, so which is the due date for the company?
which is the due date for the company. If the company is paying interest on 31st March, then 31st March becomes the due date. Then 31st March becomes the due date. Now, if the company pays interest twice a year, अगर कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है, 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है, तो सपोज कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन 31st मार्च एंड 1 अक्टूबर, तो कंपनी क्या करती है, 31st मार्च को इंटरेस्ट पे करती है, उसके बाद 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट पे करती है, साल में 2 बार। तो ये 31st मार्च एंड 1 अक्टूबर क्या है, these are the due dates. Due date are those date on which the interest will be paid for the डिबेंचर्स फॉर द सिक्योरिटीज। सो ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि कंपनी इंटरेस्ट कितने बार पे करने वाली है, वेदर वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, ट्राइस इन अ ईयर. So how much time the interest is going to be paid will be given in the question. So now we come back to this particular concept known as the X interest purchase price. Means जब मैं अपना डिबेंचर का यूनिट्स परचेज करती हूँ 100 यूनिट्स, तो मुझे 2 चीज के लिए पैसा पे करना पड़ता है. सपोज मैं किसी से या मार्केट से 100 डिबेंचर खरीद रही हूँ and the price is 100 rupees at which I am purchasing the 100 units. So 100 into 100 मुझे 10,000 rupees में डिबेंचर्स मिल जाएगा. लेकिन whenever I am purchasing or I am selling the debentures, because the interest is fixed in those debentures and हमें ये भी पता है कि कंपनी कौन से डेट पे इंटरेस्ट पे करने वाली है, तो जब भी मैं ये सिक्योरिटीज खरीदूंगी तो मैं सामने वाले को उतने पीरियड का, जितने पीरियड का उसको इंटरेस्ट मिलना बाकी है, वो इंटरेस्ट भी पे करूंगी. सो मतलब व्हेन आई एम परचेसिंग 100 यूनिट ऑफ डिबेंचर्स, अगर कंपनी ने 31st मार्च को लास्ट इंटरेस्ट पे किया है और मैं 31st जुलाई को अगर ये सिक्योरिटीज खरीद रही हूँ, तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट मार्च में दिया है, 31st मार्च में. कंपनी हैज पेड the interest to all its debenture holders on 31st March and this is 31st जुलाई. जब मैं ये सिक्योरिटीज को खरीद रही हूँ तो मुझे मार्च के बाद कितने महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला है कंपनी से, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बिकॉज दिस इज 31st जुलाई. तो मुझे जब मैं खरीदती हूँ ये सिक्योरिटीज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू pay interest along with the price of the debentures. I will also have to pay the price of the interest. मुझे इंटरेस्ट जितना एक्यूमुलेट हुआ है उतने पीरियड का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. देयर आर टू कंसेप्ट, वन इज नोन एज एक्स इंटरेस्ट, अनदर इज नोन एज कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस. तो एक्स इंटरेस्ट मतलब मैं इंटरेस्ट का पैसा अलग से पे करूंगी, इंटरेस्ट का पैसा अलग से पे करूंगी. मतलब जो मैंने 100 रुपीज पे किया डिबेंचर के लिए, वो 100 रुपीज में इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड नहीं है. What does it mean? that ये 100 रुपीज जो मैं पे कर रही हूँ फॉर 100 यूनिट ऑफ डिबेंचर, ये 100 रुपीज में इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड नहीं है. इट इज नोन एज एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस.
एंड कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस मीन्स जो मैं 100 डिबेंचर के लिए जो 100 रुपीज पे कर रही हूँ, वो 100 रुपीज में इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग वो 100 रुपीज में इंटरेस्ट जो है वो माइनस करके रिमेनिंग जो डिबेंचर का प्राइस है वो फाइंड करेंगे। अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो अलग से इंटरेस्ट का प्राइस फाइंड आउट करेंगे। एंड इफ इंटरेस्ट प्राइस इज इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस, then what we will do, we will remove that interest का प्राइस फ्रॉम द कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस। हम कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट का प्राइस जो है वो निकाल देंगे, माइनस करेंगे। दीज आर टू कंसेप्ट, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। अभी के लिए तुम लोग सिर्फ इतना समझो, एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या, इसमें इंटरेस्ट का प्राइस इंक्लूडेड नहीं है। एंड कम इंटरेस्ट मतलब ये जो प्राइस है, परचेज प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट का प्राइस भी इंक्लूडेड है। लेट अस कीप इट वेरी सिंपल कि अभी हम लोग जब हम सम्स करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। नाउ यू ओनली अंडरस्टैंड दिस मच, दैट एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस मीन्स दिस परचेज प्राइस डस नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। X interest purchase price is a price which does not include the amount of interest on the securities. एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस में सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट, आई मीन सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट जमा हुआ है वो इंक्लूडेड नहीं है। एंड कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस मीन्स द amount of interest is included in the purchase price. The amount of interest is included in the purchase price. Now let us come to the sale price. Sale price means what? हम लोग जो डिबेंचर या बॉन्ड जो भी खरीदते हैं, whenever we want to sell, अगर मार्केट में अच्छा प्राइस चल रहा होगा या हमें फंड्स का ज़रूरत होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेल दी सिक्योरिटीज। सी कब सेल करना है, इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। इफ वी रिक्वायर मनी और एनीथिंग एल्स, हम क्या कर सकते हैं, ये सिक्योरिटीज को हम सेल भी कर सकते हैं। तो सेल करते वक्त भी दो तरीके का प्राइस होगा। एक एक्स इंटरेस्ट प्राइस की जब हम हमारे सिक्योरिटीज को सेल करते हैं तो इंटरेस्ट हम नहीं इंक्लूड करेंगे वो सेल प्राइस में। व्हेन वी आर सेलिंग आवर सिक्योरिटीज तो हम लोग इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरा, when we are selling our securities, we are including the interest amount also together. Together we are including the interest amount also. So there are two types of prices. One is known as X interest price and the another one is known as cum interest price. X interest price में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है इन द सेल प्राइस। एंड कम इंटरेस्ट प्राइस में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। सपोज टुडे इज 31 जुलाई एंड हम आज हमारा सिक्योरिटी सेल करते हैं और हमें लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला है कंपनी से। कंपनी से लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। तो या तो वो 4 मंथ का इंटरेस्ट हम अलग से सेल प्राइस में इंक्लूड करते हैं तो इट इज नोन एज कम इंटरेस्ट सेल प्राइस। अगर ये 4 मंथ का इंटरेस्ट हम सेल प्राइस में इंक्लूड नहीं करते देन इट इज नोन एज एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस। क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा वेदर इट इज अ एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस
or it is a कम interest sale price, it will be clearly given in the question. अगर कम interest है तो interest included है sale price में, अगर x interest है तो interest included x इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है. These are the two different concepts when we are talking about sales. When we are talking about sales, then we have another very important concept which is known as weighted average price. हम लोग देखो, जब टेल मी हम लोग प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये कब सोचते हैं? जब हम परचेज करते हैं तब सोचते हैं, या हम जब सेल करते तब हमारे दिमाग में आता है वेद कि हमने प्रॉफिट में सेल किया या लॉस में सेल किया. सी, व्हेन वी आर परचेसिंग, इट इज अ एक्सपेंस. एनीवे इट इज अ एक्सपेंस. हम परचेज करते हैं तो हम कोई भी प्राइस में परचेज करने दो, हमारा पैसा ही बाहर जाने वाला है. तो इट इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट में खरीदा या लॉस में खरीदा, बिकॉज खरीदते वक्त तो पैसा बाहर जाने ही वाला है. तो आप कोई भी प्राइस में खरीदो, आपके लिए एक्सपेंस ही है. आप हायर प्राइस में खरीदो या आप लोअर प्राइस में खरीदो, इट विल बी अ expense for you. See, whenever you are purchasing, you will think कि मैंने इसे हायर प्राइस में खरीदा या मैंने इसे लोअर प्राइस में खरीदा. आप प्रॉफिट में खरीदा या लॉस में खरीदा नहीं बोलते हो. whenever you are purchasing something, what comes to your mind कि मैंने हायर प्राइस में खरीदा या मैंने लोअर प्राइस में खरीदा. सपोज इट बी एनीथिंग, whether it be shares, whether it be debentures, whether it be any security, or it be your groceries, or it be your vegetables, it be your fruits. आप जब भी मार्केट से खरीदते हो तो आप यही सोचते हो कि मुझे ये हाई प्राइस में मिला या मुझे ये लोअर प्राइस में मिला, बिकॉज मेरे फ्रेंड को ये लोअर प्राइस में मिला था बट मुझे ये हायर प्राइस में मिल रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगी. आप वैसा सोच के, या मुझे चलेगा हायर प्राइस में भी मिलता है बट बिकॉज आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, तो आई विल परचेस इट एट एनी कॉस्ट, बी इट अ हायर कॉस्ट, बी इट अ लोअर कॉस्ट, एट एनी वे इट इज अ एक्सपेंस. कम प्राइस देंगे तो भी ये एक्सपेंस है बिकॉज परचेज कर रहे हैं, ज्यादा प्राइस देंगे तो भी ये एक्सपेंस है बिकॉज हम परचेज कर रहे हैं. तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सिर्फ एक सिचुएशन में हम निकालते हैं, व्हेन वी आर सेलिंग समथिंग. तो जब भी हम सेल करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आता है, दैट इज, have we made a profit or a loss when we have sold? मतलब जब हमने सेल किया तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हमें सोचना हमारे दिमाग में हमेशा आएगा. that whenever you are selling something, so the first question that will come in your mind is whether we are selling at a profit or at a loss. तो ये सिचुएशन हमेशा दिमाग में आएगा व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग कि आपको ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो कौन से बेसिस में हम ये फाइंड करें कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? उसके लिए हमें एक एवरेज प्राइस होना चाहिए. So weighted average price is the average price of the security, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. सो दिस इज अवर एवरेज प्राइस. अगर ये प्राइस से कम में सेल किया, सपोज दिस इज अवर इंडिकेशन टू फाइंड आउट प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. सो वेटेड एवरेज प्राइस इज द average, is the parameter, is the from which we will
फाइंड आउट कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, इज द बेसिस for us to calculate. Weighted average price is the basis for us to calculate whether we have made a profit or a loss. So weighted average price हमें find out करना पड़ेगा. जब भी हम सेल करेंगे तो हमें weighted average price find out करना पड़ेगा. Tell me, अगर weighted average cost हमारा 100 रुपीस है और हमने 120 रुपीस में सेल किया, हमारा कॉस्ट है 100 और हमने 120 रुपीस में सेल किया, तो इसी तो प्रॉफिट और लॉस. हमारा वेटेड एवरेज प्राइस मीन्स अवर कॉस्ट है 100 रुपीस और हमने 120 रुपीस में सेल किया, तो इसी तो प्रॉफिट और लॉस. हमने यस करेक्ट, हमने हमारा वेटेड एवरेज प्राइस है 100, मतलब हमारा कॉस्ट है 100 और हमने 120 रुपीस में सेल किया, तो हमें 20 रुपीस का प्रॉफिट हुआ पर यूनिट, 20 रुपीस का प्रॉफिट हुआ. और सेम वे अगर हमारा कॉस्ट है 100, वेटेड एवरेज प्राइस है 100 और हमने अगर 90 रुपीस में सेल किया, तो अगर हमने 90 रुपीस में सेल किया तो हमारा कॉस्ट है 100 और हम लेसर देन द कॉस्ट सेल करते हैं 90 रुपीस में, तो इट इज अ लॉस ऑफ 10 रुपीस. तो हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हम सिर्फ सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे. सो व्हेनेवर देयर इज अ सेल्स, सो वी विल हैव टू कैलकुलेट वन मोर स्टेप हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हेनेवर देयर इज अ सेल्स. तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपको परचेस एंड सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. देयर में बी 2-3 परचेसेस, देयर में बी 2-3 सेल्स. मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, योर परचेसिंग एंड सेलिंग योर सिक्योरिटीज. सो परचेस का भी होगा, परचेसेस का भी इंफॉर्मेशन रहेगा. तो ठीक है, हमने इतना यूनिट परचेस किया इतने प्राइस में, इट में बी हायर प्राइस, इट में बी अ लोअर प्राइस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. बट जब हम सेल करेंगे तो सेल भी एक से ज्यादा क्वेश्चन में हो सकता है, पर एवरी टाइम व्हेन वी आर डूइंग अ सेल, we will have to calculate whether profit हुआ है या लॉस हुआ है. there may be 2-3 sales in a question, 2 या 3 सेल्स का इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, but each time when we are doing a sales transaction, we will also have to calculate profit हुआ है कि loss हुआ है. every time we will have to calculate about प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है या लॉस है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद देन वी हैव accrued interest or outstanding interest on opening or and closing balance. मतलब या ध्यान में रखो that company will pay you only that interest only on the due date. कंपनी जो है इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू डेट में पे करेगी. तो हम लोग जब हमारा बुक्स को क्लोज करेंगे ईयर एंड में, सी द पर्सन हु इज डूइंग इन्वेस्टमेंट विल हैव टू क्लोज देयर बुक्स ऑन देयर ईयर एंड, क्योंकि ईयर एंड में टैक्स फाइल करना पड़ता है, रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है. सो बी इट अ इंडिविजुअल और बी इट अ कंपनी, ईयर एंड में बुक्स को क्लोज करना पड़ता है, टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इनकम फाइल करना पड़ता है. सो इनकम फाइल करते वक्त आपको के लिए इम्पोर्टेंट है दैट आप फाइंड आउट करो कि आपका कितना इंटरेस्ट
मिलना आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो कंपनी जो है, कंपनी मीन्स कौन सा कंपनी, जिसका डिबेंचर्स आपने खरीदा है, वो कंपनी इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू डेट में देगी। और आप कौन हो सकते हो जो इन्वेस्टमेंट करते हो? यू कैन बी अ इंडिविजुअल जिसको अपना रिटर्न्स फाइल करना है, या यू मे बी अ कंपनी हु आर डूइंग योर इन्वेस्टमेंट। इन बोथ केसेस आपको आपका बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। तो आप जब आपका बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करते हो तो आप कंपेयर करते हो कि जिस कंपनी के डिबेंचर्स पे आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी ने 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट पे किया है। अब ये 31 दिसंबर है जब आप आपका बुक्स को क्लोज करते हो। गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी ने, जिस कंपनी में आपने आपका डिबेंचर्स इन्वेस्ट किया है, द कंपनी इन विच यू हैव इन्वेस्टेड योर डिबेंचर्स हैज पेड इंटरेस्ट on 31st March, has paid interest on 31st March। तो लास्ट इंटरेस्ट 31st मार्च को, बिकॉज कंपनी सिर्फ साल में एक ही बार इंटरेस्ट पे करती है, तो लास्ट इंटरेस्ट पे किया था 31st मार्च को, और ये है 31st दिसंबर। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है कंपनी को पे करने के लिए? इट इज मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मींस 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। तो उतना इंटरेस्ट के लिए हम एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। और एक चीज, जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस, ये 31 दिसंबर को ये बुक क्लोज हो गया, तो अगला दिन वो उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। 31 दिसंबर को हमने बुक्स क्लोज किया तो उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। उसके नेक्स्ट डे विल बी द ओपनिंग बैलेंस। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर। सो हमें क्या करना है, हमें क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस दोनों फाइंड आउट करना पड़ता है। बट ये कौन सा चीज का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है कि कितना मंथ्स का इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, और इंटरेस्ट इज एक्रूड। आप एक्रूड भी बोल सकते हो या यू कैन कॉल इट आउटस्टैंडिंग ऑल्सो, इट इज द सेम वर्ड। सो आउटस्टैंडिंग कितना है, एक्रूड कितना है, दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट ऑन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस में भी आपको फाइंड आउट करना है कि कितना इंटरेस्ट मिलना बाकी है, एंड क्लोजिंग बैलेंस में भी यू विल हैव टू फाइंड आउट कितना इंटरेस्ट मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है ऑन द क्लोजिंग बैलेंस and outstanding है on the opening balance। both the things we will have to find out। closing balance में भी find out करना है कि कितना outstanding है interest मिलना, and opening balance में भी find out करना है कितना outstanding है interest मिलना। this will be our first step। opening balance में interest कितना मिलना है कंपनी से वो find out करना, and our last step also कि closing balance में कितना interest outstanding है। this you will understand in a very better way when we will start with our sums। हम जब हमारा सम स्टार्ट करेंगे तो आप और अच्छे से समझोगे, ये सब कंसेप्ट्स को क्लियरली समझोगे with the examples when we will be doing the sums। and one last concept is known as carrying amount। carrying amount is the cost value or market value of investment whichever is less। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड में वैल्यू करते हैं कि मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू चल रहा है। व्हाट वी डू
इन द ईयर एंड, जब हमारा बुक्स को हमें क्लोज करना होता है, कि सपोज 31 दिसंबर को हम हमारे बुक्स को क्लोज कर रहे, हम मीन्स वी कैन बी अ इंडिविजुअल और वी मे बी अ कंपनी हु इज डूइंग इन्वेस्टमेंट। अब देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट कैन बी डन बाय एनीवन। इट मे बी अ कंपनी, एंड कंपनी में इट मे बी एनी कंपनी, इट मे बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट मे बी अ बैंकिंग कंपनी, इट मे बी अ इंश्योरेंस कंपनी, इट मे बी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी कंपनी रहने दो, एवरीवन आर एलिजिबल टू डू अ इन्वेस्टमेंट। एंड कोई भी बिजनेस भी इन्वेस्ट कर सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो एन इंडिविजुअल मीन्स लाइक वी ऑल इंडिविजुअल्स लाइक अस, इवन हमें भी मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो हम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड नाउअडेज देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस विच गिव यू सो मेनी इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले हमें क्या करना पड़ता था, कोई एजेंट हायर करना पड़ता था, जो इंटरमीडियरीज हायर करना पड़ता था, जो हमारे लिए हमारे बिहाफ में हमसे पूछ के इन्वेस्टमेंट्स करते थे, हमें आइडियाज देते थे कि इसमें इन्वेस्ट करो या मत करो। अभी तो हमें कोई एजेंट को पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें फ्री में एप्लीकेशंस आते हैं कि वो एप्लीकेशंस के हेल्प में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो we may watch so many tutorials we get nowadays in YouTube, or there are so, and we can anytime take the help of Google, and also we may get information and we may do investments. तो जरूरी नहीं है only companies are doing investment, also individuals also can do investment without much problems. But yes, initially you may face losses also, but with time you may become an expert. देखो, आप फर्स्ट डे से एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो इन्वेस्टमेंट करने में, आपको टाइम लगेगा। विथ टाइम यू मे बिकम अ एक्सपर्ट, कि आप ऑब्जर्व करते रहते हो सारे कंपनी के सिक्योरिटीज को, डिबेंचर्स को, शेयर्स को, और उससे आपको नॉलेज आता है कि ये कितना ऊपर जाता है, कितना प्राइस नीचे जाता है। विथ टाइम you will get experienced and with time you may become an expert. आप डे वन से एक्सपर्ट नहीं रह सकते हो, भले आपको गलती से प्रॉफिट्स भी मिल जाए, बट इट इज जस्ट अ फ्लूक, इट इज नॉट दैट यू हैव बिकम अ एक्सपर्ट। तो लेट अस कम बैक टू दिस कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट मतलब क्या, कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है उसका हम लोग ईयर एंड में वैल्यूएशन करते हैं। ईयर एंड में क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। वी कंपेयर कि हमने इतने में खरीदा, कॉस्ट वैल्यू हमारा इतना है और मार्केट में इसका ये वैल्यू चल रहा है, हमारा कॉस्ट वैल्यू है 100 रुपीज और मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट का 120 रुपीज चल रहा है। मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट का 120 रुपीज चल रहा है, मीन्स इट इज अ प्रॉफिट। 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। हमने 100 रुपीज में इन्वेस्टमेंट खरीदा, मार्केट में इसका 120 रुपीज चल रहा है, तो इट इज अ प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में हमें क्या पता चला, दैट हमारे सिक्योरिटीज का प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन। बट हम कैरिंग अमाउंट जब भी निकालते हैं तो हम है ना, जो हम प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन को कभी रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हमें वैल्यूएशन में प्रॉफिट मिले तो हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, हम हमारा अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट है कंजर्वेटिव कंसेप्ट, तो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट हम कभी भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। हम क्या करते, प्रॉफिट जब तक हाथ में, देखो अभी तक हमने हमारे सिक्योरिटीज को सेल नहीं किया तो हमें वो प्रॉफिट किधर मिला है। अगर हम सेल करेंगे तो ही बोल सकते हैं इतना प्रॉफिट हुआ। अब तो हम जस्ट बोल रहे हैं कि हमारा सिक्योरिटीज का वैल्यू ज्यादा चल रहा है मार्केट में, बट हम प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन है, हमें वो प्रॉफिट हाथ में नहीं मिला, हमने हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया है। सो इट इज जस्ट अ प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन।
we will not record those profit. लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉस्ट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 100 और मार्केट में 80 रुपीज वैल्यूएशन मार्केट में वही डिबेंचर्स का 80 रुपीज वैल्यू चल रहा है, सिक्योरिटीज का वैल्यू 80 रुपीज है. सो हमें 20 रुपीज का लॉस हो गया. हमने 100 रुपीज में खरीदा सिक्योरिटीज को, बट मार्केट में अब उसका 80 रुपीज वैल्यू है. सो हम क्या करेंगे, लॉस ऑन वैल्यूएशन हुआ, बट लॉस इन एनी वे, भले वो हमें अभी तक हुआ नहीं है, बट हमारे सिक्योरिटीज का वैल्यू कम हो गया तो हम रिकॉर्ड करेंगे. प्रॉफिट हो गया तो रिकॉर्ड नहीं करना है, बट लॉस हो गया, भले हमने हमारे सिक्योरिटीज को सेल नहीं किया, बट लॉस हो गया तो हमें उसको 100% रिकॉर्ड करना पड़ेगा. वो वैल्यूएशन को, अगर लॉस ऑन वैल्यूएशन है देन वी विल हैव टू रिकॉर्ड, प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन है देन वी विल नॉट रिकॉर्ड. कैरिंग अमाउंट मीन्स cost value or market value, whichever is less. Cost value or market value, whichever is less. With these concepts, I end today's lecture. From next lecture onwards, we will start with the practical sums of this chapter. Thank you very much, everyone.